Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is Hindu and Indian Express. So I'll try to cover the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the content with some relevant information that can help you in prelims and mains examination, right? So before we start, there's an important announcement that UPSC has released its civil services examination notification for 2021. So those of you who will be appearing for this year, make sure you apply for the application. There is a 1 month duration within which you can apply. So please download this notification, which is there on the website. If you are subscribed to our Apti Plus ISGAN Telegram channel also, you'll be able to download from there itself. But it's your choice. You can download from the official website also, and make sure you read all the terms and conditions and all the basic requirement that is required for this examination. So do check it out. Now moving ahead with the first topic, that is today's 4th of March. These are the list of the topic for the day. The first is Freedom in the World 2021. Focuses on the learning in the local languages. Third is Covaxin shows higher efficacy rate. Rise and recovery in the service activity. And the last is Indo-US partnership to check the China. Right. So these are some of the important article and news that has been reported. Apart from this, there would be some MCQs question that is going to help you in the upcoming prelims examination. So before we begin, let's understand the importance of this article. This is Freedom in the World 2021. So this report is important for your general studies paper 2, where important aspects of governance transparency is concerned. And this type of report is again very significant for the prelims examination. So इस तरह के सवाल कई बार prelims में authentic questions के तौर पे या static questions के तौर पे पूछे जा सकते हैं. So according to the latest Freedom in the World 2021 report, जो कि Freedom House release करती है, they said freedom in India has reduced. Right? So this is a setback for the government of India, especially for the present incumbent government, क्योंकि इस तरह के reports किसी भी incumbent government के लिए अच्छी नहीं होती है, वर्तमान में जो सरकार चल रही है. So this is a setback for them. And India has scored 67, a drop from 71 from the last year, which reflects downgrading from its free category based on the 2020 data. तो पहले की जितनी भी कैटेगरीज थी उनमें परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है. एंड इट इज़ बीइंग सेड कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें जो लोगों की जो फ्रीडम है, जो स्वच्छता है, खास करके जो फ्रीडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है. Now, political rights and civil liberties has been talked about in this report or in this survey. So it talks that political rights and civil liberties has worsened since 2014 and that there was decline and acceleration from 2019 itself. 2014 से तो डिक्लाइन देखी गई है, बट 2019 के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है. देयर इज अ एक्सक्लरेशन दैट द पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन हैज़ बीन करेल्ड बाय द गवर्नमेंट. Now the present government and its interstate allies, खास करके जो स्टेट गवर्नमेंट में जो इनके allies के साथ गवर्नमेंट है, they continue to crack down on the critics during the year, right? So these are some of the important note that we have to take if you've been asked in the examination, खास करके अगर personality test की बात करें, so they can ask you this type of opinion based questions, right? But if you're writing a mains answer, make sure आप अपने आंसर को backing दे सके इस तरह के पॉइंट से. नाउ इंडिया ड्राइविंग टूवर्ड्स अथॉरिटेरिज्म, खास करके जो जिस तरह से एक अथॉरिटी गवर्नमेंट होती है जो अथॉरिटेरिज्म को प्रमोट करती है. सो रादर देन सर्विंग द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी प्रैक्टिस, जो इंडिया की एक बहुत ही कोर एसेंस है. इंडिया इज अ कंट्री विथ विच प्रोवाइड ऑल इट्स सिटीजन विद डेमोक्रेटिक राइट्स, बट अभी प्रेजेंट में ये देखा गया कि जो अथॉरिटेरियन इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में. इस तरह की इन्फ्लुएंस सिर्फ चाइना में हुआ करती थी, बट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट एंड इट्स पार्टी आर ट्रेजिटिकली शोइंग दैट दे आर मूविंग टूवर्ड्स द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट. Now, the present government reports that they have becoming significantly less ambitious in the recent year. So, the report quotes that post 2019 के बाद जो गवर्नमेंट की ओवरऑल एम्बिशंस है वो भी कुछ हद तक घटी है. रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट कि जो absurd यूज ऑफ सिक्योरिटी है, डिफेमेशंस है, सेडिशंस के जो केसेस हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो केसेस लगाए गए हैं, दे आर वेरी क्रिटिकल एंड इवन द मीडिया वॉइसेस हैज बीन टारगेटेड बाय दिस एक्ट. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे सभी को बोलने की आज़ादी है एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ऑल्दो गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस फंडामेंटल राइट डिस्पाइट द फैक्ट दैट गवर्नमेंट इज करेलिंग देयर राइट. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
And report has also ruled कि जो Hindu nationalist movement है, they are encouraging the scapegoat of Muslim who were disproportionately blamed from the spread of the virus, right? कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे, खास करके जो मरकज की केस हुई थी दिल्ली में, और उसके अलावा और भी जो केसेस थे, सो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि दे वर द पीपल हु वेर इन्वॉल्व इन spread of the virus, but that was not actually the case. The government has finally given the clarification, but the Muslim were definitely made scapegoat of it. So this is what the report has to quote. But अगर आप जब एग्जाम में लिखें, make sure you have a neutral view. आप वहाँ पे कोई कम्युनिटी को टारगेट के बारे में ना लिखें, you have a neutral view कि हाँ इस तरह से जो दो रिलीजन्स के बीच में एक कहीं लेवल ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है इस तरह के गवर्नमेंट के एक्शन से. Now this is what the report has to say. ये आप देख सकते हो. This is from the website of the Freedom House. मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दे दिए हैं. If you want to read more, you can check the description. The detail has been provided. A complete analysis is provided. So इंडिया की रैंकिंग 67 है आउट ऑफ 100. और पॉलिटिकल राइट्स में बात करें, दिस इज 34 आउट ऑफ 40 एंड सिविल लिबर्टीज में 33 आउट ऑफ 60, राइट. और प्रीवियस ईयर की जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज 71. सो दिस इज अंडर द free category. So this is the report. आप ये number याद रखें. They can ask you any number also in the prelims examination. Now focus on learning in the local languages. The Prime Minister has advocated that the local language should be promoted and it should be also be the part of National Education Policy 2021. So जो हमारी NEP है, National Education Policy 2020, तो इसके एक पार्ट होने की ज़रूरत है. This is important for your General Studies paper 2. And the many points in the bit and pieces would be again relevant for the prelims examination. In the recent webinar address, the Prime Minister said कि जो education system है that should break the linguistic barrier. जितने भी linguistic barrier है, खास करके अगर हर states की बात करें तो हर स्टेट में अपने अपने लैंग्वेज हैं. सो उस तरह के जो लिंग्विस्टिक बैरियर है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है. एंड ही सेड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि जो रूरल एरिया है, खास करके जो पुअर पीपल हैं, they are not deprived of any type of immunity despite having the talent, because we know in India we have lot of talent that is flourishing in the core of the country. खास करके अगर इंटीरियर की भी बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी टैलेंट है. So he asked the government that the government should make a policy where everyone has a chance to flourish himself. And he stated that the focus on learning in the local languages one of the most significant improvement that can be brought in the national education policy. So एक तरह से आप समझ सकते हो इंडिजिनसली करने की कोशिश की जा रही है, लोकलाइजेशन को प्रमोट करना या लोकल लैंग्वेजेस जो हैं लिंग्विस्टिक बैरियर को खत्म करने की बात की गई है इन द अपकमिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी. सो दिस कैन बी अ वेरी एनालिटिकल क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो. सो मेक श्योर आप इस पर भी कोई आंसर प्रिपेयर करें. Now, roadmap for the mission. What should be the roadmap? It is important to work for the mission mode, जहाँ पे ये इंश्योर की जाए खास करके जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो पुअर फैमिलीज हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उसको गवर्नमेंट की जो नई इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, उसके थ्रू एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मैकेनिज्म बिल्ड करने की कोशिश की जाए. इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए कि सारे लोगों को वहाँ पे इन्वॉल्व किया जा सके, especially the people from the rural India. This is what the Prime Minister has to say. And self confidence come when youth have the faith in their skill, education and knowledge. So until unless people is well educated, well skilled and they do not have good knowledge, the self confidence level is very low. So for ensuring that self confidence in the youth is high, we need to impart them with education, skill and knowledge. And it was a responsibility of the academics and language expert to ensure the best content, जो best content available है उससे लोगों को रूबरू कराया जाए, उससे इंटरेक्ट कराया जाए, चाहे वो बुक के माध्यम से हो, पब्लिक अवेयरनेस, स्पीच, एनी अदर प्रोग्राम दैट इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट शुड बी देयर एंड इट शुड बी मेड इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, राइट. एंड दिस वाज डेफिनेटटली पॉसिबल ड्यूरिंग द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी. चाहे वेबिनार भी कर सकते हैं, वेब सेमिनार्स भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको टेक्नोलॉजिकल जो कि मदद से ले जा करके वी कैन अपग्रेड दैट पार्ट एज वेल, राइट. नाउ नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशंस की बात की गई है. दिस वुड बी इंश्योरिंग एंड इट वुड बी अ की इन इंश्योरिंग जो डिजिटल बैरियर है, खास करके जो हमारी लिंग्विस्टिक बैरियर है उसको ख़त्म किया जा सके.
And in budget itself, he asserted that the broadened government linked the education with the employability and entrepreneurial capacity. So once the people are educated, they have the good skill, it is very much possible and the probability is very high that they can have their self-employment और either they can go for the entrepreneurship as well, right? तो ये दोनों चीजें एम्प्लॉयबिलिटी को भी बढ़ाएगी और एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी जो है उसको भी बहुत हद तक प्रमोट करेगी. Now there was emphasis on the equity of access on the institutional building. So इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का मतलब है खास करके कोई ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नए इंस्टीट्यूशंस बनाए जहां पे स्किलिंग को प्रमोट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके. ये दैट इज अ नीड ऑफ द आवर एंड दैट शुड बी डन ऑन इक्विटी टू एक्सेस. सो एवरीवन हैज द एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस. नाउ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इस तरह के गवर्नमेंट ने काम किया जहाँ पे एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी. बजट में स्पेशली इसके लिए 50,000 करोड़ रुपीज स्पेशली एलोकेट किए गए हैं सो दैट there could be a research foundation which could promote equity access of the knowledge to each and every individual of this country whomsoever want to continue with the research foundations or whomsoever want to go ahead with other research activities. Now the other news, that is Covaxin shows higher efficacy rate. This is important for your general studies paper 2. So as we know that all the vaccine that is being administered in India अभी 60 प्लस के लोगों को मिल रही है और खास करके 45 प्लस के लोगों को उनको है जो कि कोमॉर्बिड के कैटेगरीज में आते हैं. सो ऑल दिस वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इमरजेंसी पर्पसेस ओनली एंड द वैक्सीनेशन इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट प्रायोरिटी. तो अभी भी वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, ट्रायल रुके नहीं है. दिस इज टू आपको ये बताना जरूरी है कि ट्रायल अभी भी नहीं रुके हैं. जो कोवैक्सीन है वो उन्होंने अपने कुछ और इम्पोर्टेंट जो ट्रायल्स हुए थे उनके रिजल्ट्स बताए हैं, राइट. सी व्हाट आर द डिटेल्स. अकॉर्डिंग टू द भारत बायोटेक, जो कि इंडिया की सबसे फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन थी, उसके बाद दूसरी थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड शीट, राइट. सो कोविड शीट वॉज द सेकेंड. सो दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द क्लिनिकल एफिकेसी, जिसमें कहा गया है कि ये जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी रेट 81% के आसपास है ऑन द फेज 3 ट्रायल. एंड द वैक्सीन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड जो हाई क्लिनिकल एफिकेसी है इम्यूनोजेनिसिटी के लिए जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें अलग अलग वेरिएंट में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है. नाउ व्हाट आर द रिजल्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम द फेज 3 स्टडी. सो द भारत बायोटेक विच इज अगेन इन द कोलैबोरेशन ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके ऑलमोस्ट 26,000 पार्टिसिपेंट्स के साथ ट्रायल को किया, जिसमें फ्रॉम 18 ईयर्स टू 98 ईयर के पीपल को इनरोल किया गया था. It include 243 over the age of 60 and 4,500 people with the comorbid categories, ताकि हमें ये कोमॉर्बिडिटी के खास करके जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको मॉनिटर करने में मदद मिले. Now the first result of the phase 3 called the primary endpoint based on the first occurrence of the polymerase chain reaction, PCR के नाम से भी जाना जाता है. तो कुछ सिम्टोमेटिक कंडीशंस दिखे हैं जहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर लेवल के सिम्टम्स भी दिखे हैं. बट although the vaccine is completely safe because जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री उन्होंने भी इसको क्लैरिफिकेशन दी है, ICMR, SITS को, they have all given the approval कि vaccine is completely safe for any age group. Now with the onset of this 14 days would be the second dose that would be completed, right. So again the next result that would be very soon coming and they would be sharing with the Government of India. Now rise and recovery in the service activity. So this is the good news coming with the service sector, because post COVID-19 this sector has seen a bit of improvement and ultimately it will improve in the coming quarters as well. So this would be important for your general studies paper 3 and it is a section under inclusive growth and issues arising from it. So according to IHS market survey, this is a survey which is very authentic survey. This says that the seasonal adjusted Indian business activity है वो बढ़ी है from 55% in January to 55.3% in February. And this is the sharpest rate of expansion that has been seen in the service sector considering the market condition. And the number of companies suggested that the COVID pandemic restriction about the labor supply, right? एंड हाउ इज द जॉब ऑफ, खास करके अगर बात करें जो जिस तरह के एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में, जॉब के कैटेगरी में क्या परफॉर्मेंसेज हैं. सो द पेस ऑफ द जॉब शेडिंग एक्सकलेटेड फ्रॉम जनवरी बट इट वाज मॉडरेट ओवरऑल. जॉब में खास करके एम्प्लॉयमेंट में बहुत हद तक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इट इज ऑल्दो मॉडरेट. एंड मोर ओवर द लेटेस्ट सर्विसेज सेक्टर दैट हैज एक्सटेंडेड टू द करेंट ग्रोथ हैव सीक्वेंस टू 5 months, राइट. सो यहाँ पे बहुत हद तक इंप्रूवमेंट नहीं है. इन कमिंग क्वार्टर्स दे वुड सीन द इंप्रूवमेंट.
और जो प्राइवेट सेक्टर है दैट हैज रोज इन द पास्ट 4 मंथ इन द February, राइट. प्राइवेट सेक्टर में बिकॉज दे हैव सेड पोस्ट लॉकडाउन देयर थिंग्स आर इंप्रूविंग, बट डेफिनेटली जो कंपोजिट PMI आउटपुट है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे 55.58% थी, अब ये बढ़ करके 57.3% हो चुकी है, राइट. सो दिस शोज द एक्सपेंशन ऑफ द आउटरेज ऑन द एवरेज, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि जो कमिंग क्वार्टर्स है, पिछले 2 क्वार्टर में गवर्नमेंट ने कहा है ऑलरेडी, Q3 एंड Q4, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इंडो-US पार्टनरशिप टू चेक चाइना, बेसिकली अगर बात करें इसमें इस एडिटोरियल में, दिस इज देयर इन द इंडियन एक्सप्रेस एंड इट टॉक्स कि किस तरह से इंडिया ने US के साथ कोलैबोरेट किया और उसकी पार्टनरशिप में चाइना को चेक करने में बहुत हद तक मदद मिली है. So this is important for your general studies paper 2. So after India and China soldier engaged in the extremism, the Galwan Valley, that is a disengagement was completed and verified in the Pongso without any additional losses, and even the domestic resources under the pandemic related pressure, military ने एक रीअलाइड किया है सिग्निफिकेंट एसेट्स पॉइंट को देखते हैं कि जो कन्फ्रंटेशन चली है इंडिया और चाइना के बीच में उसमें क्या करने की जरूरत है और US का क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है. सो अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉरेन मिनिस्टर दैट इज S जयशंकर, उन्होंने कहा है कि इंडिया ने बहुत ही प्रोलॉन्ग एक डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करने की कोशिश की है चीज़ों को, जहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए गए, डेमोन्स्ट्रेट किए गए कि जो ग्लोबल सपोर्ट है इंडिया के पोजीशन में वो बहुत स्ट्रांग रहे, बिकॉज इंडिया ने बहुत सारे रिपरकशन खास करके रिटेलिएशन में स्टेप्स लिए थे, जहाँ पे चाइनीज़ ऐप को भी बैन किया गया, बहुत सारे इम्पोर्ट्स भी बंद किए गए बिकॉज ऑफ द प्रोसेस दैट कंटिन्यूड इन द गैल्वन वैली. और अभी इसके रिजल्ट्स काफ़ी ठीक है, डिसएंगेजमेंट हुई है, दोनों कंट्री के बीच में ये एंगेजमेंट हुई है, दे वोंट बी फाइटिंग एनी मोर इन दैट पर्टिकुलर एरिया और धीरे धीरे वो डिसएंगेज करेंगे. नाउ अगर US के कॉपरेशन की बात करें, सो 2+2 की जब मीटिंग हुई थी उसमें इट वॉज ऑलरेडी बीइंग सेड कि जो बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट है उसमें काफ़ी चीज़ें सही हुई है, एंड इन दिसंबर US गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द परचेज ऑफ 900 मिलियन हार्डवेयर सर्विसेज इन द फ्लीट ऑफ C-130 Super Hercules and the transport aircraft, right? So these were some of the things that US has given advantage to India, and दोनों countries ने अपने military जो cooperation है उसको improve किया है. Even in November itself, India and US and Japan has welcomed Australia Malabar exercise, जहाँ की जिसको Quad agreement के नाम से भी जाना जाता है. Quad agreement already हुई थी. We have discussed that in our डेली न्यूज एनालिसिस एज वेल. तो जो कॉम्बैट ड्रिल थी वो तीनों कंट्री खास करके इंडिया, US और जापान में भी जो मिलिट्री एक्टिविटीज है, जो मिलिट्री परफॉर्मेंसेज है, उनको बूस्ट करेगी. नाउ व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? डेफिनेटली इट वुड एनहांस द कोऑपरेशन बिटवीन द बायलैटरल मल्टीलैटरल इशूज, जहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट इशूज हैं इंडिया के लिए लाइक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन और क्लाइमेट चेंज, बिकॉज US हैज ज्वाइन द पेरिस क्लाइमेट चेंज. जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसे डिसएंगेज करने की बात की थी, बट जॉय बिडेन हैज फाइनली एग्रीड दैट दे वुड बी कंटिन्यूइंग विद द कमिटमेंट टू द क्लाइमेट चेंज. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जहाँ पे इंडिया और US जैसे कंट्री अगर मिलकर साथ दें तो वी कैन अचीव द टारगेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज टू द इंटरनेशनल बैकिंग कम फ्रॉम दिस. नाउ इंडिया मिलिट्री करेज, advocacy and even the resolve to the problem come with the stability in the north eastern border. तो जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं, खास करके नॉर्दर्न के बॉर्डर हो या फिर ईस्ट, खास करके हमारे नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर हो, उन सारे बॉर्डर्स में बॉर्डर स्टेबिलिटी होना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और सिंस इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अनसेटल बॉर्डर या अनस्टेबल जो स्टेट है उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, ऐसा कहना है US के जो अपने रिसर्च हैं उनमें भी. Now, the India's strategy is ending the current confrontation with the China is a way forward. Definitely, this is a way forward because we need to move ahead. Because COVID के बाद जिस तरह से इकोनॉमिक रिसेशन इंडिया ने देखा है, we need to move ahead. कुछ जो ऐसी इंपॉर्टेंट एसेंशियल एट्यूनेटेड खास करके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर जो मेडिसिन की जो वैक्सीन हैं वो हमें वहाँ से मंगवाने होते हैं चाइना से, एंड वेरी एसेंशियल पार्ट दैट इज रिक्वायर्ड हैज़ टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना. वी कैन नॉट स्केप आउट. सो अ गुड बायलैटरल रिलेशनशिप इज ओनली द way out. Now moving to the MCQs question of the day. The first question is from the Maritime Summit 2021. It focuses area of upgradation of infrastructure and aim to India strengthen the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, and Denmark is a partner country for the 3-day summit. So आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं, A, B, C और D. Whatever you feel is the correct answer, you can let us know in the comment section. Now the second question, that is with regards to Swachh Sarathi Fellowship. First, that Government of India is undertake Waste to Wealth mission from the Swachh Sarathi Fellowship, and the Waste to Wealth mission is one of the 9th mission with the Prime Minister Science and Technology
Innovation Advisory Council, PMSTIAC, right? So what you have to do, you have to just choose the correct option and write your answer in the comment section down below. So do practice. As you know that the UPSC notification has already been released. Now it is time that you have to practice a lot so that you can make a best effort on this part, और आपके जो खास करके attempt है that should be more successful. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.